Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of business studies. Today in this lecture, I am going to cover some topics of staffing chapter. The topic which I am covering in this lecture are staffing as human resource management and process of staffing, or steps involved in staffing process. In my last lecture, I have started a staffing chapter. I have explained you the meaning of staffing. Staffing is the arrangement of manpower in the business. Staffing is the arrangement of manpower resources in the business. Now see, what is human resource management in a staffing process? Human resource management is that part of management process which develops and manages the human elements of the enterprise, considering their knowledge, skill, creativity, talent and potential for contributing towards organizational objectives. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट का पार्ट है बेटा, जिसमें हम डेवलप करते हैं ह्यूमन एलिमेंट्स को बिजनेस में, एज पर देयर नॉलेज, एज पर देयर स्किल, एज पर देयर क्रिएटिविटी, एज पर देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Human resource management involve procuring, developing, maintaining and appraising a competent and satisfied workforce to achieve the goal of the organization efficiently and effectively. Human resource management बेटा procure करता है, develop करता है, maintain करता है, appraise करता है competent and satisfied workforce को, so that they can achieve the goal of the business efficiently and effectively. Its purpose is to enable every human being working in the organization to make his best possible contribution. ठीक है, सारे ह्यूमन बींग जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं उनको बेस्ट पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं. स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. When staffing function is carried on at a large scale, it becomes human resource management. जब staffing function को हम large scale पे work करते हैं तो वो human resource management को create करते हैं. So human resource management is dealing with the manpower element of the business. Activities of human resource management are human resource planning. It means meaning the number and type of personnel required to fill the vacant job position of an organization. Second, employing people. Recruitment, selection and placement is the second activity involved in human resource management. Career growth, training and development of the employee. Then performance appraisal, including feedback, motivation by offering financial and non-financial incentives. Then compensation, all remuneration of employees keeping in mind their qualification and other factors. And then social security and welfare of people. तो ये आपकी एक्टिविटीज़ है जो हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कैरिड ऑन करते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज डीलिंग विद ह्यूमन एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस. नाउ सी process of staffing or steps involved in staffing process. Staffing is referred as both line as well as staff activity. It is referred as line activity because, like other functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing is also performed by every manager. It is a staff activity because it is an important area of management. Also, like marketing management, financial management, we have human resource management department also in the large scale organization. स्टाफिंग बेटा दो तरीके से वर्क करता है, लाइन एक्टिविटी एंड स्टाफ एक्टिविटी. लाइन एक्टिविटी में स्टाफिंग अदर फंक्शंस की तरह प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, और स्टाफिंग इज परफॉर्म बाय एवरी मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ स्टाफ एक्टिविटी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट का है. जैसे आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, ऐसे ही आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है इन द लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन. See, these are the steps involved in staffing process. Estimating manpower requirement सबसे फर्स्ट स्टेप है. सेकंड, रिक्रूटमेंट. थर्ड, सेलेक्टिंग फ्रॉम among the applications. Third, fourth, placement and orientation. Fifth, training and development. And sixth, performance appraisal. See, number one, estimating manpower requirement. It involves the following: making inventory of current human resources in terms of qualification, training and skills. मैन पावर रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस का बेटा. इसमें हम ये चेकआउट करते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विच आर रिक्वायर्ड इन द बिजनेस. देन फ्यूचर रिसोर्सेज में कितने डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, हम उसे चेक करते हैं. डेवलप करते हैं प्रोग्राम को एज अ ह्यूमन रिसोर्स. जॉब एनालिसिस करते हैं ताकि वी कैन प्रोवाइड द डिटेल्स टू द एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो स्टाफिंग का जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग, जिसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड है इन द बिजनेस, सो दैट वी कैन डू द रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय. सेकेंड इज रिक्रूटमेंट. तो it refers to identification of the sources of manpower availability and making efforts to secure applicants for the various job position in the organization.
रिक्रूटमेंट इज़ द प्रोसेस जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंट सोर्सेज को, मैन पावर अवेलेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं सो दैट to secure applicant for the various job position of the organization. Recruitment is inviting application for the post. ठीक है, एज पर मैन पावर रिक्वायरमेंट हम इन्वाइट करते हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट. इट इज़ कॉल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. दैट इज़ द सेकेंड स्टेप. थर्ड इज सिलेक्शन. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस एग्जाम, टेस्ट एंड इंटरव्यूज़. सिलेक्शन थर्ड स्टेप है जिसमें हम चूज़ करते हैं और अपॉइंट करते हैं राइट कैंडिडेट को फॉर वेरियस जॉब पोजीशन को, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स कराते हैं, टेस्ट कराते हैं और इंटरव्यूज़ ऑर्गेनाइज करते हैं. नंबर 4 इज़ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. When a new employee reports for duty, he is to be placed on the job for which he is best suited. प्लेसमेंट मीन्स जब हम किसी भी न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं ड्यूटी के लिए तो हम उसको कहीं ना कहीं किसी बेस्ट सूटेड प्लेस पे लगाते हैं. तो प्लेसमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इंश्योर करता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन इज कंसर्न with the process of introducing a new employee to the organization. ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं तो उसको एग्जिस्टिंग स्टाफ से मिलवाना, उसका इंडक्शन करना विद द एग्जिस्टिंग स्टाफ विद देयर टीम. दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन और इंडक्शन. ठीक है, दे आर ऑल्सो टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वर्किंग आवर्स, प्रोसीजर फॉर फेलो एम्प्लॉयज़ के साथ मिलवाना, सुपरवाइजर से मिलाना, फैमिलराइज करना उसको ऑर्गेनाइजेशन में. दैट इज़ ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. और ये जब इसलिए भी होता है क्योंकि हम इसमें एम्प्लॉयज़ को वर्किंग आवर्स बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं वर्क करने का, मेडिकल फैसिलिटीज़ बताते हैं, हिस्ट्री बताते हैं, जोग्राफी बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, रिलेटेड टू वेजेस वगैरह, ये सब कुछ बताना. दैट इज़ द वर्क ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. नाउ फिफ्थ इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. प्लेसमेंट करने के बाद सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को ताकि उनकी स्किल्स इंप्रूव हो सके, उनकी नॉलेज इंप्रूव हो सके, वो अच्छे से अच्छे मेथड को यूज़ कर सके फॉर डूइंग द जॉब. दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय इन ऑल रिस्पेक्ट्स. It is the process by which the employee acquire skill and competence to do their present job and increase their capability for higher job in future. Next is performance appraisal. ये last step है. It is concerned with rating or evaluating the performance of employees. Transfer and promotion of the staff are based on performance appraisal. Performance appraisal के basis पर ही transfer होता है, promotion होता है staff का. इसमें हम rate करते हैं, evaluate करते हैं performance of the employees of the organization. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल. तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं और जो फर्स्ट स्टेप है दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप, जो लास्ट स्टेप है दैट विल बी द लास्ट स्टेप. तो ये आपके डिफरेंट स्टेप्स हैं इन्वॉल्व इन स्टाफिंग प्रोसेस. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. 2 topics I have completed. Note down all these things in your copies. Thank you beta. Have a nice day.